overwhelmed with the kind of response we've gotten. Not many people get to do this, and to be able to be a Kashmiri and to be designing it for the national cricket team for women's and men's alike, I felt like, this is great as an opportunity to be able to do this with Adidas, right? It's not Amy sa, koi sa, Lallu sa, koi brand, but Adidas reached out, right? So it felt great to be working on this. We spent about 7 months designing these jerseys, prototyping fabric, prototyping printing, techniques, what is the kind of material that could go on, what is sweat proof and all of that. So as a designer, again, I'm going to go back to someone who has not learned or studied. It's always fun to sort of work on different projects, right? I keep saying I get bored of design of same things again and again, but पता नहीं ऊपर वाले की देन है कि मेरे को अलग अलग प्रोजेक्ट्स काम करने को मिलता है, and that's how I sort of get to keep doing things that are different from each other. बस घमंड नहीं है. How many of you here you can call anybody, at a blink of your eye? Yeah, we all have these, gadgets, smartphone. And this got created because somebody thought, what? There is a way that I can talk to anybody in the world if I want to. And we got mobile phones. How many of you here, you have a Facebook or an Instagram account of the entire world at one place? People can talk to each other, share videos, and do I know what not. Zoom calls, this video. Of Kashmir as a place, but the beauty in the soul and the spirit of the people of Kashmir. Right? And in my opinion, that's a phenomenal takeaway for me. Right? I was really happy and glad to hear about that. Now let's come back to our subject of the day today, exploring one of the greatest personalities that I admire till date. At that point in time, General Electricals had started their operations in India, and there was a gentleman by the name of Tyagarajan, and they used to fondly call him Tiger, and he actually was a tiger, right? When I used to listen to him in town halls, I used to get mesmerized. And that's when I was like, what? Sky's the limit, as they say. As cliche as it may sound, so I got to actually design the Sangeet, wherein, the whole idea of the bazaar was the crafts of India, right? And that's where they would have stalls, one-off, each products were sold. Yes, they were sold at a wedding. That's what really blew my mind, that people would come to a wedding and buy things. But essentially, that was the whole idea where these artisans could get benefited. And also something that I felt like was a great initiative from Reliance as well. So obviously with flowers as well, we ended up doing flowers, but in the crafts world, right? So everything that we did here, that's me. I enjoyed dancing. Second biggest client, guess who it was? It was the Ambanis again. It was Ambanis, yes. So they have another son and they have a third son who's about to get married. Let's hope he probably score that. But in March 2019 is when they reached out again and they said, listen, there's something we would really like you to work on. But this time, instead of the Sangeet, it was the wedding itself, right? And I remember Khalid right here was also, invited for that wedding, which is how we actually ended up knowing each other. So this is what we got. It's like, online pages where you can sort of learn stuff, but essentially it's where it all comes. It comes from here, right? So it's all where I'm doing things, where I sort of hire architects, so I know for a fact what I'm doing is structurally sound. This is something that we recently did. The entire store was a cave of sorts where a griffin was coming in. So all of this is something that we created for a fashion brand, which is also very cool because it was a very tiny space. Also something we did in Delhi very recently. The fact that I feel kuch naya karte is also because I feel like roz wahi kaam bore ho jata. I would obviously talk about why there is this thing called Style By. A lot of my friends, I put it up on the internet. Everyone was like, yaar, mujhe bhi chahiye. I also want. Slowly, publications started to reach. Shayad ghabarayenge nahi karne se because it's a different medium. But to my surprise, they were quite surprised. They were in fact willing to do these things because they were like, what? ये नया है, इसमें मजा आ रहा है करने में. Painted by a truck art painter. जो लोग ट्रक्स पे गाय भैंस बनाते हैं, मैंने उसे कहा यार कुछ बनाओ, मजा करते हैं साथ में. And that's how this came about, right? This is something that he wore at his IPL matches in 2020. This is 2021 where he again reached, because this is where I felt like I can actually put our crafts into the map as well. So this first design which you're not able to see clearly, but it was actually taken inspiration from Kani shawls from Kashmir, right? That's how I actually ended up designing. So I was like, what, we should wear our culture with pride. So that's what I did there. The other two were more about
the snow leopard that is also a mascot, right? So that's how these two came about. Last year, I think till we got COVID, I think hardly most of the people must not have known where the hospital is. Anyway, so I worked as a registrar for a period of 1.5 years in the hospital. And unfortunately, that hospital was just like a dispensary. It was working from a 10 to 2, no infrastructure, nothing of any sort was there where I could practice as a pulmonologist for what I was trained for. Man rank, and till I got the privilege of heading the department. Now it's a time, some things are under my control, so I would like to contribute to my society, because that's what my aim was. To help our society, to help the upbringing of the specialty where we have so many patients. We have so many patients of respiratory disease, COPD, asthma, lung cancer, so much prevalent in the whole of our. In fact, most of my students are either from UK, US, Canada, Australia, and of course even from India as well. So the best part about it is I do not have to be in front of them physically to teach them. What I'm trying to say here is that, it might sound a little juvenile, but I still find it so amazing how technology has helped us in so many ways, and it still is doing. In fact, I remember performing for IIMUN back in 2021. It was an online event, of course, so I kind of missed the cheers that I generally get from an audience when I'm, live, but the excitement that the kids showed through the comments were still infectious. Well, in the midst of the unseen challenges, it's also important to nurture creativity. फुटबॉल खेलती थी. उसके बाद एक टाइम क्या हो गया, कुछ लड़के आए स्कूल में, बोला कि ये गेम है रग्बी, क्योंकि मुझे रग्बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि मैंने कश्मीर में सुना भी नहीं था कि रग्बी भी कोई स्पोर्ट है. तो उसके बाद कुछ वॉलंटियर्स आए, मुझे पीटी टीचर ने कहा कि आप स्पोर्ट्स की हेड हो यहाँ पे, क्यों ना पार्टिसिपेट करो. मैंने बोला मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ये बॉल भी नहीं देखी है, ये बॉल कैसी दिखती है, कैसे खेलते हैं. फिर वो मुझे स्टिक लेके दौड़ी पीछे कोठी बाग को, बोला नहीं नहीं आपको पार्टिसिपेट करना है. मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेती हूँ आज. उसके बाद जो ही मैंने 1-2 हफ्ते तक सीखा कि रग्बी है क्या, कैसे खेलते हैं. उसके बाद मैं स्कूल लेवल तक मैं खेलती थी, स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे और मैं हर एक टूर्नामेंट में हमारी टीम क्वालिफाई करती थी. फिर मेरी सिलेक्शन हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए. फिर जब मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई स्टेट के लिए. स्टेट जब मैंने खेला, फिर मुझे नेशनल जाना था, लेकिन घर वालों ने अलो नहीं किया. बोला लड़की हो, क्या गसक नबर, क्या बाहर जाओगी, लड़के साथ होंगे, कैसा माहौल है, नहीं आपको अगर खेलना है आप स्टेट में ही खेलो, स्टेट के बाहर मत खेलो. फिर 1-2 साल तक मैं स्टेट में खेलती थी, तो पापा को इंसिस्ट किया नहीं आप मुझे पार्टिसिपेट करने दो, मैं आपका नाम रोशन करूँगी. फिर मैंने चाचू को बोला, सबको बोला प्लीज़ पापा को मनाओ, मैं खेलना चाहती हूँ. उसके बाद पापा ने बोला ठीक है जाओ, चलो मैं एक मौका देता हूँ आप. तो जब मैं वापस आई कश्मीर, तो मेरा नाम आ गया न्यूज़पेपर पे, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए. तो पापा ने कहा ठीक है फिर आप खेलो. उसके बाद जब मैंने खेली और मैं बहुत आगे बढ़ी, तो मैंने सोचा कि कश्मीर में ये नहीं है, रग्बी कोई नहीं जानता है. 2004 से यहाँ रग्बी, लेकिन खेलते नहीं, किसी को नहीं पता कि रग्बी भी एक स्पोर्ट है. तो मैं जाऊँगी रग्बी इंट्रोड्यूस करने. तो मैं फिर परमिशन लेके मैं हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में गई रग्बी इंट्रोड्यूस करने. फिर मुझे अपॉइंट किया ऑल इंडिया की तरफ से रग्बी डेवलपमेंट ऑफिसर. फिर मैं ऑल इंडिया के लिए काम करती थी और मैं तब मेरी एज 21 थी. और फिर कश्मीर में एक टूर्नामेंट था गुलमर्ग में, और आपको पता ही है कश्मीर के लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है विंटर्स में. तो विंटर में एक टूर्नामेंट था स्नो पे, स्नो रग्बी, और मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था स्नो. काफ़ी मेहनत की, तो जम्मू कश्मीर ने तब सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता. और तब मैंने रोते रोते पापा को फ़ोन. उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी, तो मैंने सोचा कि नहीं खेल कूद में है, लोगों की बातें सुनी, क्योंकि मैं मस्त थी खेल कूद में, मुझे क्या पता लोग बातें करते हैं, गाली गलौज लगाते हैं. तो फिर क्या हो गया, जब मैं आगे बढ़ी, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची, तो जो मेरे टीममेट्स थे ना, मैं उनके बाद आई थी, वो बोल रहे थे कि
ये क्यों आगे बढ़ी? हम जो इससे पहले है 10 साल पहले आए ये रग्बी में, परसों आई और इतनी फेमस बन गए, इसके आर्टिकल्स इंटरनेशनल लेवल तक आ गए। उन्होंने क्या किया, वो मेरे से बात करनी उन्होंने छोड़, क्योंकि जब तक मैं टीम में नहीं होती थी वो नहीं खेलते थे, उनको मैं चाहिए। वो पापा को फ़ोन किया, हमारा आज टूर्नामेंट है, इसको छोड़ो। पापा बोलते थे ठीक है। फिर अचानक से सब बदल गया लाइफ में। मैंने सोचा शायद मैंने गलती की है, मेहनत की मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में। उसके बाद जब मेरे टीममेट्स मुझसे जेल्स होने लगे तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ बात करनी पहले छोड़ दी। जिन लोगों ने मुझे सिखाया, रास्ता दिखाया, वही मेरे अगेंस्ट हो गए। क्यों? तुम क्यों आगे बढ़ी? अगर कोई इंटरनेशनल से आता है तो वो क्यों पहले इर्तिका को ढूंढती? इतनी क्या है इर्तिका, इसने क्या किया इतना? तो फिर मैं कहीं ना कहीं डिप्रेस हो गई, मैंने इतना क्या किया, मैं क्या करूँगी। उसके बाद मेरा आर्टिकल आ गया कहीं से, तो इन्होंने क्या किया, मेरे जो टीममेट्स थे, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मेरी फ़ोटो डाली सोशल मीडिया पे, बोला शी इज़ फेक, शी इज़ नो मोर। आ रहे थे, उनको लगा कि मैं अपनी सिम बंद करूँगी तो इनसे उनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन नहीं। फिर मैं 6 महीने तक कमरे में थी, भाई बहन हंसाने में लगे थे, पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, माँ भी मेरे पिल्लों पे आके रोती थी, बोलती वो मिस कोर क्या गो, ये गिनान असल खुश। लेकिन फिर एक दिन मुझे पापा ने बोला आज मैं एक बात बताऊंगा, आपको पता है स्टार बनना इजी नहीं है, स्टार बनने के लिए आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा। उसने मुझे एग्जाम्पल दी, महबूबा मुफ्ती की एग्जाम्पल दी, ज़ारा वसीम की एग्जाम्पल, बोला तिम तिशक हो तिम तिशक वसा। क्या उसने अपनी कुर्सी छोड़ी, उसको भी इतनी गालियाँ पड़ती। फिर मैंने सोचा नहीं, अब मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं फेक नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। मैं खुद उठी, पापा ने बोला तुम गिरी हो, तुम उठो, मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें दौड़ना सिखाऊंगा। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं अपनी पॉकेट मनी से मैं जम्मू गई, मैं दिल्ली गई, मैंने परमिशन लाई गवर्नमेंट से और मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। पहले मुझे 2-4 बच्चे थे, आते आते मुझे 40-50 प्लेयर्स आ गए। मैं चाहती थी कि अगर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ी तो कोई ना कोई बच्चा जिनको मैं सिखाऊं वो आगे बढ़े और मेरा नाम रोशन करे। उसके बाद फिर जब मैं सिखाती थी ने करके दिखाया। उसके बाद किस्मत की ये बात है कि मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मेरी जॉब लग गई। उसके बाद सब बोलते थे छमलच, मुझे पापा ने इसको किया है, पापा ने सिफारिश, जबकि पापा ने मुझे खाली रास्ता दिखाया, बाकी सब मैंने खुद किया। मैं चाहती हूँ बस कश्मीर में क्या, कश्मीर की जो सोच है ना वो बदले। यहाँ नहीं चाहते कि लड़कियाँ आगे बढ़े, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या किसी और के फील्ड में। चाहती हूँ कश्मीर की लड़कियाँ आगे बढ़े, चाहे वो स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन, भाई उनकी जो बहनें हैं वो उनको सपोर्ट करे, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट रखे। यहाँ मैंने अक्सर कश्मीर में देखा है, यहाँ घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। बोले अच्छा दरबदरी ये क्या करो, सुन की ही ना इनसे क्या गासे, सुन की ही गसन, रिश्तेदार क्या बनन, हमसाय क्या बनन। मैं क्या थी, जब मैं अपने सोसाइटी में निकलती थी मुझे बोलते थे क्या निकली स्कूटी पे, क्या लगाती है जीन्स, क्या लगाती है वो, क्या लगाती है शॉर्ट्स लगा के निकलती है स्पोर्ट्स के लड़कों के साथ खेलने। नहीं, मैंने उनकी सोच बदली वहाँ सोसाइटी में। आज मुझे सोसाइटी में बोलते, हमें नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी में एक स्टार रहती है, हमारी कॉलोनी में एक स्टार रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मेरा मकसद ये नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझे फेम मिले, मैं फेम के लिए बिल्कुल कुछ भी ना, मैंने आज तक कभी फेम के लिए कुछ किया। मैं चाहती हूँ कि कश्मीर आगे बढ़े। जो बाकी स्टेट्स मैंने देखी है वो आगे है, लेकिन कश्मीर में इतना ज़्यादा टैलेंट है, वो किसी स्टेट में टैलेंट नहीं है। मैं चाहती कश्मीर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करो। So done. 1, 2, 3. Then wait, huh? Wait.